All right, guys, good evening. We'll wait for a couple of minutes for others to join in as well. And ठीक है, आज का टारगेट आई थिंक सबको पता ही है. ठीक है, good. So let's wait a couple of minutes, then we'll start. We'll go in the same manner like we did last time. पहले conceptual doubts discuss कर लेंगे, then FBO and FBS and उससे related फिर get equipped से related कुछ doubts रहेंगे तो ठीक है. Meanwhile, let me just quickly check your doubts on the Google spreadsheet as well. So all right. ठीक है. So let's quickly work through the conceptual part first. अब इस लेक्चर का जो टारगेट था उसमें मैंने आपको सिर्फ लेक्चर 4 देखने के लिए बोला था. Now lecture 4 as such does not have much theory in it. The only important topic that was discussed in that lecture was concentration cells, right? So based on that आप लोगों ने starting में एक quick set of differences समझे होंगे between concentration cell and galvanic cell, and then based on the type of concentration cell आपने कुछ electrolyte concentration, electrode concentration या फिर electrolyte plus electrode concentration वाला example देखा होगा. As per their names, the difference that lies in these concentration cells is in the concentration of electrolyte, electrode or both respectively. So पहला अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. तो यहाँ पर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट दोनों तरफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोड है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द concentration of the electrolyte. That is the key difference. So between these two, understand the difference that is there, and uske basis par how do we go about writing E cell का expression. तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए ई सेल का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कोई बताएगा? ई नॉट सेल तो खैर जीरो रहेगा ही सही. व्हाट अबाउट ई सेल? 0.059 by 2 log concentration at the cathode divided by concentration at the anode. वेल थोड़ा सा कैच है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. समझ में आया क्यों? Yes sir, yes sir. Yeah. ऑल राइट. अच्छा, अगर मैं आपके सामने इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल दिखाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया. इसमें कैसा, इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है दोनों तरफ, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है. जो इलेक्ट्रोड है वहां पर द डिफरेंस इज कमिंग दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज डिफरेंट ऑन बोथ द साइड्स. तो अब इस केस में व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ई सेल? So the formula will be the same. The only thing that will get reversed would be the anode and cathode.
नॉट एग्जैक्टली इसलिए सी आई एम दैट इज आई से कि हवा में आंसर मत करो, आप लिख लिख के करो ना, यू आर गोइंग टू बी श्योर ऑफ योर आंसर। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर एनोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड। ठीक है, कैसे आया ये अगेन आप इक्वेशंस लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Yes, sir, got it. All right. Now look at this example where we have a concentration cell in which both electrolyte and electrode का concentrations are different. ठीक है, partial pressure भी different है and molar concentration भी different है। तो इस केस में ई सेल का एक्सप्रेशन क्या होगा? Zero point 059 by 2 log of C1 square P2 upon C2 square P1. क्यों पार्शियल प्रेशर का क्या हुआ? सर C1 square P2 upon C2 square P1. अच्छा, C1 स्क्वायर P2 गड़बड़ हो गया सर, माइनस साइन के साथ होगा वो। हाँ, वो जो आपने बोला ना वो माइनस साइन के साथ में होगा, तो वो माइनस साइन अंदर आ जाएगा। Right, sorry, yeah. This would be the answer. ठीक है, so again the same thing that I am saying, जितना जल्दबाजी करोगे उतना केयरलेस मिस्टेक होने का चांस रहेगा। That is the key challenge in these questions. बाकी तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा चलो, let me give you one more chance with this example. इस टाइम क्लोरीन गैस और क्लोरीन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल है, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है और दोनों तरफ प्रेशर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ई सेल का एक्सप्रेशन लिख के बताओ क्या रहेगा। Sir, C1 square P2 upon C2 square P1. C1 square P2. Yes, sir. Let's see. C1 square P2, correct. Upon C2 square P1. ठीक है, यही रहेगा। राइट, इस केस में वापस से आपने ढंग से एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या जाने वाला है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। All right, so I hope ये basics आपको समझ में आ गए हैं। These are something which are abundantly clear to everyone. So now we can start with the booklet discussion related to concentration cells as well as the other questions जो मैंने आपको दिए थे। सबसे पहले FBO से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। So FBO में आपको इस लेक्चर का टारगेट था 51 से 55। Right, so when I look at 51 to 55, एक ही डाउट है, that is 50, और नहीं इनफैक्ट दो डाउट है, 52 and 54। ठीक है, so let's see 52 में ओके तो वापस से यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट ये कैसा हो गया आपका मेटल आयन और इधर भी मेटल आयन। तो जब आप
ऑब्जर्व करोगे इसका ई सेल का फॉर्मूला, ठीक है, एनोड पर आप लिखोगे Fe solid is giving Fe2 plus aqueous plus 2 electron, and कैथोड पे लिखोगे इसका opposite Fe2 plus aqueous plus 2 electrons is giving Fe solid. So what you are going to be left is Fe2 plus aqueous. This is cathode giving Fe2 plus aqueous anode, and then आपका E cell का फॉर्मूला आ जाएगा 0.059 by 2 into log of Fe2 plus cathode upon Fe2 plus anode. तो यहाँ से एक important conclusion notes में भी निकाल के दिखाया गया था आपको, that Fe2 plus concentration of cathode will be greater than Fe2 plus concentration of anode. Cathode पर ज़्यादा concentration रहेगी, anode पे कम concentration रहेगी. अब क्या होगा? As you can see, let me kind of put it in a more diagrammatic point of view. ठीक है, यहाँ पर एनोड है, एनोड पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, कैथोड पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा एनोड पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कैथोड पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. कब तक ये सेल चलेगा? जब तक दोनों में बराबर कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ जाता. ठीक है, सो एज सेल रन्स, ठीक है, Fe2 plus concentration cathode decreases and Fe2 plus concentration at anode increases till the concentration on the two sides become equal. ये समझ में आया? इसके बेसिस पर अब आप 50 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो विद ईच ऑप्शन. ठीक है, देन 54th क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछा है. अच्छा, 54th क्वेश्चन में वापस से नोटिस करना, ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया है, so I would recommend that you refer video lectures for this, where E is equal to, in fact यहाँ पर E naught 0 था, sorry E naught 0 नहीं है, this is not a concentration cell, but E cell का expression comes out to be the same as that of a concentration cell. ठीक है, स्पेशली ऐसा मेटल मेटल आयन वाला concentration cell. अब यहाँ पर what you need to figure out is Ag plus cathode and anode का concentration. ये तो straight forward दिया हुआ है. Ag plus anode के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, Ksp upon Br minus की concentration लिखना पड़ेगा. ठीक है, इन दोनों को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये आपको पता ही है, you will get to know the value of Ksp. ठीक है, so this is a pretty straightforward question. अच्छा, so FBO में I think यही questions थे which were part of the doubt discussion to be done, and then FBS में मैंने आपको questions दिए थे. अच्छा, let me remember, आप लोगों के साथ में FBS के कुछ questions बचे हुए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. कौन से questions थे वो? The starting वाला doubts from last time. Starting वाला doubts मतलब कौन The से Nernst equation का. अरे क्वेश्चन नंबर बोलो ना, मतलब ऐसे मुझे वो याद नहीं आ रहा. सर हमने कंसंट्रेशन आई मीन सॉरी एप्लीकेशन वाला किया था, बट उसके अलावा बचा था, बस वही क्वेश्चंस किए थे एफबीएस में. अरे बाबा, 8 से 21 एंड 28 से 33 ये क्वेश्चन दिए थे, तो मुझे क्वेश्चन नंबर बताओगे? So like that. Oh, wait, sir. हाँ, कौन से डिस्कस हो गए थे, कौन से रह गए थे? अच्छा चलो ठीक है यार, मेरे पास खुद के पास ही यहाँ पे नोट्स हैं तो सही. OAPJC 2 28 to 33 was done.
OAPJC 3 में, हाँ ये 33 से लेकर 30 तक करा था मैंने इनफैक्ट, ठीक है। 33, 32, 31 एंड 30 ये कर लिया था, ठीक है। तो आप लोगों का आई थिंक स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बचे हुए थे। ऑल राइट, सो ओके, 28th एंड 29th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या है, कहाँ गए रे। ओके, सो 29 से शुरू कर देता हूँ मैं, एंड देन 29 है, 28 है, 27 है, 26 है, 24 है, 25। क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम सबके सब तुमने पूछ लिया। चलो ठीक है, डिस्कस कर ही लेते हैं। नाउ अब 29th क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। सो इन फैक्ट 29 एंड 28 में यू हैव दैट सेम नर्स्ट इक्वेशन मेथड। आप लोग पहले रिएक्शन लिख लो, ठीक है, एंड देन ई नॉट फिगर आउट करो, मतलब एन और क्यू फिगर आउट करो, ठीक है। जैसे 29th में करके दिखा देता हूँ। 29th में कैसा था, एनोड पर H2 gas is giving 2H plus aqueous plus 2 electrons, right? ये जो HOCN है ये बेसिकली एक वीक एसिड है जो कि H plus प्रोवाइड कर रहा है, एंड कैथोड पर you have Ag plus aqueous plus 2 plus not 2 electron plus just an electron is giving Ag solid। इनको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, उसका N2 आएगा एंड Q रहेगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का भी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये 1 बार दिया हुआ है या 1 ATM दिया हुआ है, अच्छा। देन आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.8 मोलर दिया हुआ है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको फिगर आउट करना है। E नॉट सेल विल बी इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, सो 0.8 माइनस 0 ये भी दिया हुआ है, एंड अब आपने नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। E cell is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log of H plus का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.8 का स्क्वायर, तो ये 2 इसका कट जाएगा। अब आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा एंड H प्लस विल बी इक्वल टू रूट KC, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अब आप आंसर निकाल लो, K निकल जाएगा आपका, ठीक है। 28 पे मैं अलग से मेहनत नहीं कर रहा हूँ, जस्ट SOP ऑफ SC दिया हुआ है, कैलोमर इलेक्ट्रोड माइनस 0.28 वोल्ट, तो उसकी जगह SRP यूज करना जब सेल का फॉर्मूला लिखोगे, E नॉट सेल का। बस यही कैच है, बाकी सारे स्टेप्स सेम है, ठीक है। सर वो जो डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डिपेंडेंस ऑफ ई नॉट ऑन टेम्परेचर वाला जो है, तो उसमें वो ई नॉट है कि ई सेल है? कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं, वो जो टॉपिक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ई नॉट, दोनों का ही रहेगा ना, दोनों पे होगा।
तो जब हम G नॉट यूज करेंगे तो E नॉट होगा और जब G यूज करेंगे तो E होगा ऐसे। हाँ मतलब द थिंग इज दैट बोथ वेरी विद द टेम्परेचर। E नॉट भी वेरी करता है और E भी वेरी करता है। ओके ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा डेल E बाई डेल टी विथ प्रेशर तो ये E का चेंज हो गया। अगर मैं डेल E नॉट बाई डेल टी लिख रहा हूँ विथ प्रेशर तो ये E नॉट का वेरिएशन हो गया विथ टेम्परेचर। ओके सर। ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा डेल्टा S बाय एन एफ और ये हो जाएगा डेल्टा S नॉट बाय एन एफ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। All right, so okay, then FBS के concentration cell वाले questions देखना। So ठीक है, ये आप लोगों ने लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछे हैं बट आई थिंक आपको शायद रीड करने में दिक्कत हुई, तो लेट मी सिंप्लीफाई देम फॉर यू। 23, 24 एंड 27। ठीक है, और concentration cell with same formula। ठीक है, इसमें क्या रहेगा इन सब में, E cell will be 0.059 into log of H plus concentration at cathode upon H plus concentration at anode। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना रहेगा, बस अब आपको यही फिगर आउट करना है। तो 23rd में अगर आप देखोगे तो H plus concentration at cathode, ठीक है, will be equal to root K into C। ठीक है, तो ये 10 की पावर -3 into C and H plus concentration at anode will be also root K into C, will be 10 की पावर -5 into C। ठीक है, why did I choose 10 की पावर -3 at cathode? ठीक है, for spontaneous cell that is E cell greater than 0, H plus concentration at cathode has to be greater than H plus concentration at anode। मतलब इनफैक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये हमने क्लास के वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो दैट्स व्हाई आई चूज कैथोड वाले पर K 10 की पावर -3। समझ में आया? ये आप पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 24th में नोटिस करना, 24th में भी वापस ऐसा ही है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। ये ठीक है, दोनों में यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर वीक एसिड सॉल्यूशंस थे दोनों में। यहाँ पर अभी एक जगह वीक एसिड सॉल्यूशन है और एक जगह स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी वीक बेस का सॉल्यूशन है। तो कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड चूज करूं मैं? बताओ। एक जगह पर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है और दूसरी जगह पर वीक बेस सॉल्यूशन है, तो इनमें से कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा? Anode will be acid. Sorry, cathode will be acid. राइट, कैथोड विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज मेरे को एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड H ज्यादा plus more. H प्लस चाहिए ना। राइट, तो ये मेरा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसके कितने बोले गए हैं? 0.5 नहीं नॉट 0.5, इसके 25 मिलीमोल्स हैं इन 500 ml सॉल्यूशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड will be Kw upon OH minus concentration, which will be Kw upon, ये वीक बेस के लिए तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं? रूट KBC। तो ये 10 की पावर -14 अपॉन रूट ओवर 10 की पावर -9 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.5/500। ठीक है, ये आप निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। 27th में H+ कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, ठीक है, ये आपको वीक एसिड सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, ऑल्दो ये गड़बड़ है, मतलब एंड कैथोड पर आपको एक्चुअली वीक बेस सोल्यूशन दे दिया, ऐसा लिख के दे दिया। तो आपने नोटिस करा होगा कि इसकी वजह से ई सेल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट वे में लिखना चाहिए था। So anyways, this will be root KAC and this will be same KW upon OH minus, which will be KW upon root KBC. Now you put the data across. ये 1.8 into 10 की power minus 5 into 0.1 है, and ये 10 की power minus 14 upon root over 1.8 into 10 to the power minus 5 into 0.01 है. So you put this data and you will be able to get the answer. ठीक है, so ये consistent formula के ऊपर work करें. Similarly 25 and 26 have same formula. ठीक है, this is also something, again refer video lecture, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है that how it is going to be, right? You will have a straightforward formula here, which is E cell is equal to 0.059 by 1 into log of Ag plus concentration at cathode upon Ag plus concentration at anode. ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है. सो 25th क्वेश्चन में आप देखोगे तो Ag plus concentration at cathode, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 0.022 मोलर, बट Ag plus concentration at anode के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है. That is something which will be Ksp upon I minus का concentration. ठीक है, तो इससे अब आप पुट करोगे वहां पे तो आपको Ksp मिल जाएगा. 26th में दोनों जगह पे यही मेहनत करनी पड़ रही है, दोनों जगह मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है. सो इट विल बी Ksp of AgCl upon concentration of Cl minus, and Ag plus का concentration at anode will be Ksp of AgBr upon concentration of Br minus. So you just substitute that over there and you will be able to get the ratio of the concentrations of the chloride and bromide ions. ठीक है, तो आई थिंक ये concentration cell वाले क्वेश्चन सॉर्टेड है FBS के. अच्छा, इसके अलावा भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सो यू गाइस हैव आस्क्ड 21st क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन में कैसा रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन में EMF of the cell M giving Mn plus 0.02 molar. क्या करूं इसमें? मैं वन लाइन में कर रहा हूँ. 0.81 is equal to 0 minus 0.76 minus 0.059 upon 2 into log of
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू MN प्लस, अच्छा सॉरी ये N ही निकालना है, अच्छा सो ये ओके ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अटके हो गए, आई अंडरस्टूड। N प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, आप लोग अटके हो गए यहाँ पर, दिस वुड हैव बीन 2N एंड दिस वुड हैव बीन N, ठीक है, जब आप रिएक्शन लिखोगे। बट लकीली यहाँ पर कैसा है कि ये दोनों का डेटा 1 है, ठीक है, H2 और H प्लस का, तो इसके लिए सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुई है। खैर इतना फर्क पड़ता भी नहीं, समझ में आया आप लोगों को? तो इससे अब आप N निकाल सकते हो। देन 18th क्वेश्चन, 18th में हाँ थोड़ा सा कैच ये है कि जिंक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, बट जिंक 2 प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इसका 20% है, सो 20% ऑफ 0.1 मोलर, ठीक है, मतलब मे बी इट इज अ सॉल्ट विद अ, मे बी इट्स अ सॉल्ट with high covalent character, ठीक है, दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मतलब ऐसा हो रहा है कि जिंक सॉल्ट सॉलिड से पहले जिंक सॉल्ट एक्वस में आ रहा है, एंड देन दैट जिंक सॉल्ट एक्वस इज डिसोसिएटिंग इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस जो भी अनायन रहेगा, ठीक है, सो ये 0.1 मोलर है एंड ये 0.1 मोलर फिर 20% डिसोसिएट होकर जिंक 2 प्लस आयन दे रहा है, ठीक है, ये समझ में आया? तो आपको ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयंस यूज करने हैं while doing the calculations, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है E of Zn2 plus Zn का, that will be E naught of Zn2 plus Zn minus 0.059 by 2 into log of Zn2 plus का concentration, नहीं not 1 upon Zn2 plus का concentration, ठीक है, ये आप करोगे तो आपका आंसर मैच करना चाहिए। देन 14th का थर्ड क्वेश्चन, 14th का थर्ड क्वेश्चन ये तो अब आप कर सकते हो ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये अब इजी हो जाएगा, पहले का डाउट था। 13th क्वेश्चन, हाँ 13th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। 13th क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, नोटिस करना, MnO4 माइनस से, ठीक है, पहले MnO4 2 माइनस बनाया जा रहा है, फिर वहां से MnO2, देन वहां से Mn प्लस 3, देन वहां से Mn प्लस 2 एंड देन वहां से Mn, ठीक है, अगर मैं नोटिस करूं तो ये E01, इसको E02, इसको E03, इसको E04 एंड इसको E05 बोल देता है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखूं तो ये +7 से +6 जा रहा है, मतलब ये N11 हो गया, फिर ये +6 से यहाँ +4 जा रहा है तो N22 हो गया, फिर ये +4 से +3 जा रहा है तो ये N3 फिर से 1 हो गया,
फिर ये +3 से +2 जा रहा है तो ये n4 फिर से 1 हो गया, और ये +2 से 0 जा रहा है तो n5 2 हो गया। ये समझ में आया सबको n का वैल्यू कैसे आ रहा है? ऑल राइट, नाउ अब आपको MnO4 माइनस से Mn+2 जाने के लिए पूछा जा रहा है। सो एज यू कैन सी ये +7 से +2 जा रहा है तो इसका n का वैल्यू 5 रहेगा, एंड इसका E0 is something that you are being asked. So if you can notice that this equation is the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4, इन सबको ऐड करके बन रहा है ये 1 plus 2 plus 3 plus 4. So you can write that this delta G0 is equal to delta G01 plus delta G02 plus delta G03 plus delta G04. ठीक है, and this is equal to minus 5f E0 minus 1f E0. ठीक है, दूसरे केस में minus 2f E0 2, तीसरे केस में n का वैल्यू 1 है तो ये minus 1f E0 3, एंड चौथे केस में भी वापस n का वैल्यू 1 ही है तो minus f E0 4. ये सब आपके सामने डेटा है E1 2 3 4 का. So as a result you will get the E0 of this, right? Similarly you can calculate E0 for MnO4 2 minus to Mn+2, right? वही सेम मेथडोलॉजी लगेगी. ठीक है, इस केस में n4 रहेगा एंड इसका E0 मतलब आप इसको E0 डैश बोल दो, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा, एंड in the end you will have to compare E0 versus E0 dash, and the statement that we already know is that higher SRP is the stronger oxidizing agent. ठीक है, तो काफी लंबा क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, बट आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एक बार करना. ठीक है, डोंट जस्ट लेट कि हाँ सोल्यूशन पता पड़ गया है तो विल नॉट वर्क ऑन दिस. इनफैक्ट गेट इक्विप्ड में अभी एक और क्वेश्चन है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, आई विल गो अ लिटिल फास्टर विद दैट बिकॉज ये मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. All right, then next question is something which is question number 12. but 12 कौन सॉल्व करेगा? रबिश, k निकाल लो. that k equilibrium constant will be equal to the concentration of zinc 2 plus upon copper 2 plus, and k कहाँ से आ जाएगा? RT by NF log k. So E into RT by NF का एंटी लॉग या एंटी लॉन, ये आप करते रहो. 11th is also not something that I'm going to do. 11th is also pretty much straightforward. All right, ठीक है. FBS में इसके अलावा कुछ और है? If not, then we can move to get equipped. बढ़े आगे? Yeah. ठीक है. So give me 1 minute.
हाँ, so get equipped में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट रबिश। दोबारा मत पूछना मुझसे ये। नाइनटीन्थ। ऑलराइट, सो 19th में कैसा है? 19th में you have a hydrogen electrode, ठीक है, and इसमें भी what is being asked is the oxidation potential, ठीक है, this is something that is being asked. So oxidation potential मतलब H2 giving 2H plus plus 2 electrons. So as a Nernst equation formula, I would write this as in the following manner: minus 0.059 by 2 into log of H plus का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो उसको 1 बार मान लो। ठीक है, 1 बार मान लोगे तो फिर ये 2 और ये 2 कट जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज एज, और ई नॉट भी 0 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा 0 एंड माइनस ऑफ लॉग H प्लस क्या होता है pH। ठीक है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है, ये समझ में आया? अब ये जो pH है बफर सोल्यूशन के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। सो पहले केस में pH विल बी इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो दैट सॉल्ट अपॉन द एसिड इज x by y, एंड दूसरे केस में दैट सॉल्ट अपॉन एसिड इज y by x। तो ये दो इक्वेशन आपके सामने बन जाएंगी। अब pK निकालना है तो इसमें बस सिंपली इनको ऐड कर दो, तो वो x by y एंड y by x एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये आपका pK का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। So that's 19th question, and then 21 गलती से आ गया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, so this is something to be discussed later. Okay, then 20 कौन सा पूछा है? 22 में कौन सा ऑप्शन में अटक गए? ए करेक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल है, E0 0 होगा। बी नहीं होगा। ठीक है, बी में डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस NFE। ई थोड़ा 0 है, E0 0 है। एंड सेल रिएक्शन सी वाला ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि एनोड नहीं, इनफैक्ट ये गलत होगा। ठीक है, जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन है वो कम होगा, जिसका कम कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, हायर
concentration will reduce, not, I should not use the word reduce, I should say will be on LHS, and lower concentration will be on RHS. ठीक है, डी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम पर दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर जाएंगे. देन 23 में ना C will also be So the answer. answer key says, so for the answer key says that the correct answer for 22 is B and C. B and C. Yeah, the answer key says तो that. वही तो पूछा है, which of the statements are false. Oh. तो B और C तो आंसर रहेगा फिर. ठीक है, 23rd में C ऑप्शन भी आंसर रहेगा. वॉल्यूम चेंज करोगे इलेक्ट्रोलाइट का तो उस पर फर्क पड़ेगा. 24th क्वेश्चन में केमिस्ट फाउंड दैट स्टैंडर्ड. थोड़ा तेज बोलो नित्या. नहीं, तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है. किसी और को आ रही है इसकी आवाज? So she's saying I think she she did is not 21st understand में 23rd. एक जन बताओ यार. I think she's saying that she did not understand the 23rd question. She did not understand the 23rd question. Either that or the 21st question. So EMF depend करेगा on the concentration, temperature and volume of electrolyte. मतलब नर्स इक्वेशन में देखोगे ना आप, तो नर्स इक्वेशन में T फीचर कर रहा है, concentration फीचर कर रहे हैं, and concentration वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. ठीक. Then 24th. So 24th में क्या है आप चेक करो ना. E will be E naught minus 0.059 by 2 into log of partial pressure of H2 into Zn2 plus का concentration upon H plus के concentration का square, and E naught का value SRP cathode minus SRP anode, तो ये 0.76 हो जाएगा. सो आप लोग इसके बेसिस पे चेक करो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. ठीक है, उसके हिसाब से बता दो आंसर. ठीक है, 25th इज समथिंग सिमिलर टू जो अभी मैंने आपको बताया था, सिमिलर टू FBS क्वेश्चन 13 था ना वो. हाँ, सो उसी की तरह करना है आपको. इसमें अब आप थोड़ा सा, अब मैं फास्ट करके दिखाता हूँ तो नोटिस करना समझ में आएगा कि नहीं आएगा. डिस्प्रपोर्शनेट करना है HOBr को इनटू डिफरेंट स्पीशीज. तो अब मैं हर एक केस का पहले E नॉट निकाल लेता हूँ कि HOBr बाकी सब में अगर जा रहा है तो उसके लिए क्या रहेगा. सो HOBr इफ इट गोज टू Br2, ठीक है, सो यहाँ पर +1 से 0 जा रहा है, तो इसका SRP, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको दिया हुआ है 1.6 वोल्ट. ठीक है, एंड N इसका है 1. ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्टली लिखा हुआ है. अच्छा, बट HOBr गोइंग टू Br माइनस, ठीक है, इसका SRP मैं कैसे लिखूंगा? Should I write the SRP as 1.6 plus 1.07? No. ये गलत है, राइट, ऐसे नहीं लिखेंगे. सो अब मैं इसमें थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है.
1 into 1.6 plus 1 into 1.07 अपॉन 2, ये रहेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ऑल राइट। देन HOBr गिविंग BrO3 माइनस, ठीक है, ये +1 से +5 जा रहा है। इसका आपको एक्चुअली, अब ये SOP है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, दिस विल बी माइनस ऑफ 1.47, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। अच्छा, बट अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ब्रोमीन +1 से +7 जा रहा है, तो इसके केस में अब SOP कैसे लिखना चाहिए? डेफिनेटली इट इज नॉट 1.47 एंड -1.74, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। द आंसर विल बी -4 into 1.47 and -2 into 1.74 upon 6। ये समझ में आया क्या? नो सर। बस तो बस ठीक है। अब आपको फॉर ईच ऑप्शन चेक करना है। फॉर ईच ऑप्शन E0 cell will be SRP cathode plus SOP anode। तो चेक करो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंगली फिर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन के लिए करना पड़ेगा वो। अब आपको ये ऊपर से ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली पिक एंड चूज करने पड़ेंगे। क्लियर वो है? सेकंड वाला समझ में नहीं आया, ये वाला तो वो 4 and 2 वाला n is equals to 6। तो इसमें आप देखो ना, जब ये बेसिकली जो फॉर्मूला है वो समेशन NE अपॉन N का है। ठीक है, तो जब हम HOBr से BrO3 जा रहे हैं, BrO3 माइनस, तो इतना E है और उसका N4 है। ठीक है, एंड फिर जब BrO3 माइनस से BrO4 माइनस जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए E आपको 1.74 दिया हुआ है विद नेगेटिव साइन, एंड जो N है उस केस में वो 2 रहेगा क्योंकि आप +5 से +7 जा रहे हो। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर का N जो है वो HOBr से BrO4 माइनस जाने, BrO4 माइनस जाने का, यानी कि N आप नोटिस करोगे तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, सो यार ये क्या बोल रही है नित्या? भाई तुम नित्या कुछ करो अपने, तो माइक को आसपास लेके आओ, आई कांट हियर यू। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या ईयरफोन लगा के बैठे हो क्या? So she said got it। अच्छा, तुम टाइप कर दो ना नित्या, इन केस आई एम नॉट एबल टू गेट इट। ऑल राइट, सो देन नेक्स्ट कम्स 26। ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, रेफर कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, ये हमने अभी डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, भर भर के डिटेल करा था इसमें। देन 27, सो 27 में आप समझ सकते हो ना कैसे होगा। 27 में देखो, Z2 is being passed through a solution of X minus and Y minus, ठीक है, एंड बोला जा रहा है कि Z2 is able to liberate X2, ठीक है, बट Y माइनस के साथ में
there is no reaction. तो अब अगर if you remember the non metals के केस में, ठीक है, in case of non metals more active का मतलब क्या होता था? higher SRP, ठीक है, displaced less active के ions, ठीक है, less active मतलब lower SRP. So यहाँ पर if you will ask, अगर मुझे SRP का ऑर्डर लिखना है तो Y2 ऊपर रहेगा, Z2 बीच में रहेगा एंड X2 उसके नीचे रहेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया. यू कैन काइंड ऑफ कोरिलेट देम टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी, ठीक है. So now you can give your answers. Then, okay, 28th के लिए I would recommend to read NCERT. ठीक है, ये आप पढ़ो. 29th नहीं, सॉरी 29 तो दिया नहीं था. Then 35 and 38 है. ओके, सो 35, ठीक है. 35 भी अच्छा क्वेश्चन है. आपको देखो यहाँ पर डेल्टा H निकालना है. डेल्टा H इज डेल्टा G प्लस T डेल्टा S, राइट. डेल्टा G आप क्या लिखोगे? माइनस NFE, एंड इसको आप क्या लिखोगे? T इंटू NF डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. तो अब आपके सामने डेटा है, n की वैल्यू 2 है, एंड ये क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है तो मुझे E का वैल्यू भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला यूज करना चाहिए. यहाँ पर 0.6753 प्लस टेम्परेचर 298 है इंटू 2 इंटू 96500. अब यहाँ पर नोटिस करना, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. तो नीचे मैंने 298 माइनस 283 लिखा है, तो ऊपर भी आपको इसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा. ऊपर भी आपको 0.6753 माइनस 0.6915 लिखना पड़ेगा, ठीक है. आई होप दिस इज समथिंग दैट इज क्लियर, ठीक है. सो विद दिस नाउ यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर्स. All right. इससे जरूर ये करना कि इसका जूल में आएगा, उसको किलो जूल में जरूर निकाल लेना. देन 38 का बी ऑप्शन गलत है ना. इसमें क्या हो जाएगा? Q तो इंक्रीज करेगा एंड E डिक्रीज करेगा एज द सेल रिएक्शन प्रोग्रेसेस. Q अभी K से छोटा है ना, तो Q K की तरफ जाएगा ना as the reaction progresses. Then 39th का C ऑप्शन, 39th का C ऑप्शन क्या है? नहीं नहीं, आई विल नॉट बी टीचिंग. मतलब अगर तुम्हारे डाउट्स हो गए हैं तो तुम डिस्कनेक्ट कर सकते हो. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. ठीक है. सो देन 39th का C, for a spontaneous cell reaction M will act as negative
नहीं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह नहीं एक्ट करेगा ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह करेगा। मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल में, एक मिनट, गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होता है। जो एक्चुअली एनोड कैथोड का यूनिवर्सल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। आई थिंक शायद इसी वजह से डाउट आया होगा। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने पढ़ा नहीं है, बट ये आप पढ़ोगे। ऑल राइट, देन 39th के बाद में 41। हाँ, 41 में नोटिस करना, 41 में ओके, इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। ई ऑफ, मतलब पहले आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बोला जा रहा है। E of A n plus, this will be equal to E naught of A n plus minus RT by NF ln 1 upon AN plus. ठीक है, so I can actually not my bad, not minus, it will be actually AN plus, ऊपर ही आएगा, न्यूमरेटर में ही आएगा। ठीक है, एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में अगर मैं लिखूंगा तो E of A n plus 2 AN will be E naught of AN plus 2A minus RT by NF ln 1 upon AN plus। ये समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। अच्छा, अभी इसमें मैं इसको प्लस साइन करके न्यूमरेटर में लिख देता हूँ। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि ये दोनों मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये लॉन वाला टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, ये लॉन वाला टर्म पॉजिटिव है बिकॉज ये 1 मोलर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आप नोटिस करोगे तो एक एक करके हम लोग अगर ऑप्शन रीड करेंगे, सो ए ऑप्शन, दिस इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव टर्म बढ़ेगा, जिसकी वजह से ई सेल या ई जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, तो ए सही है। नाउ बी, इट डील्स विद द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल में देखना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पॉजिटिव टर्म बढ़ेगा, तो ए का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, तो ये भी सही है। सी के केस में कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अभी एक्चुअली सी जो है वो वापस से रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही है। इट इज अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, एंड उसमें कैसा है, ए का वैल्यू बढ़ेगा, पॉजिटिव टर्म बढ़ेगा, तो ई सेल भी बढ़ेगा, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन में अगर मैं टेम्परेचर, अच्छा डी ऑप्शन वापस से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में ही है। डी ऑप्शन वापस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर ई घटेगा। ठीक है,
तो डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये तो आपका इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका हो गया, बट आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो वन मोर थिंग is the fact that B and D option are controversial. Why? Because E naught also depends on temperature. ठीक है, so correct answer तो del E by del T से ही पता पड़ेगा. This is the correct way to answer, but अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं है तो हम लोग इसके थ्रू नहीं जा पाएंगे, बट ये गड़बड़ है. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. All right. Now, next 42. अरे 42 में सब यही गलती करते हैं यार. E is equal to E naught minus RT by NF ln Q होता है, K नहीं होता. ठीक है. Then 43rd में 43rd में ओके, आई थिंक सी ऑप्शन में आप लोग गड़बड़ कर रहे होगे. सो इसमें नोटिस करना ई सेल विल बी 0.059 by 2 into log of Pb2 plus cathode upon Pb2 plus anode. Like I hope इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा. This is something that was abundantly clear. ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे, सो कैथोड में व्हाट यू हैव इज KSP is equal to Pb2 plus का concentration into I minus की concentration का square. So it is S into 2S का square, that is KSP, जो saturated solution होगा. तो S आएगा आपका KSP upon 4 की power 1/3. ठीक है. And anode में again it's a saturated solution, but the expression will be different because of the stoichiometry. So यहाँ पर you can put it as S dash into S dash. So what does this mean? This means that S dash is equal to root KSP. तो आप इन दोनों को आप substitute करो in the expression, तो फिर आपका correct answer आ जाएगा. ठीक है. 44th में if you consider the galvanic cell, तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? What rubbish. E is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log of CD2 plus का concentration upon Cu2 plus का concentration, and then think of what it will do to increase or decrease के. ये तो आना चाहिए आपको. Then okay, we come to the passage type. So passage 1 में question number 1,
ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नोटिस करना दैट डेल्टा G is equal to minus 827 किलोजूल पर मोल ऑफ O2। ठीक है, यानी कि O2 का कोफिशिएंट इन द रिएक्शन हैज टू बी 1। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द रिएक्शन इज आल्सो गिवन। सो अब अगर मुझे फॉर गिवन रिएक्शन n निकालना है, 4/3 Al gives O2 gives 2/3 Al2O3, तो मैं कैसे निकालूंगा? आप या तो इसके बेसिस पे निकाल सकते हो दैट दिस विल बी टेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर आप इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हो कि 0 से +3 जा रहा है और 4/3 एटम्स जा रहे हैं, राइट? इनके तरफ से भी निकाल सकते हो। एन फैक्टर नहीं है ये, ठीक है, प्लीज नोटिस दिस इज नॉट द एन फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। सो लेट मी राइट यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स टेकन and this is 4 electrons given। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली n equal to 4 यूज करना है, तो आपका डेल्टा G is equal to -4 into F into E, तो यहाँ से आपका E आएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन 2 आप कर सकते हो। ओके, पैसेज 4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये भी सिंपल ही है, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड बी एबल टू डू। नाउ बेस्ड ऑन क्वेश्चन 1, ये आपने फिगर आउट कर लिया होगा दैट E नॉट ऑफ y2 + 2y is plus 0.34 volt and E नॉट ऑफ x2 + 2x that is minus 0.25 volt. So what does this mean? This means that you will be able to get E नॉट सेल। ठीक है, मतलब ये आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा एंड ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा। सो E नॉट सेल विल कम आउट टू बी 0.34 माइनस -0.25। ठीक है, 0.59 वोल्ट। अब आप E निकाल लो, E हो जाएगा 0.59 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ आपके सामने कॉन्सेंट्रेशंस बनेंगी। ये बनेगा वाइट नहीं, ये एनोड है ना, तो ये X2+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Y2+ का कॉन्सेंट्रेशन। यू पुट द डेटा, यू गेट द आंसर। ठीक है, एंड थर्ड के लिए आपको वही मैनिपुलेशंस करना है। ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए। ठीक है, all right, so I think these were the primary doubts। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पूछना है आप लोगों को? Sir, I had a doubt in the salt example. हाँ बोलो। Sir, in the salt example, the 7th one. हाँ, सॉल्ट एग्जाम्पल में 7th वाला ना, ये पिछली क्लास में भी पूछा था, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मेरी मेहनत बचा लेता हूँ। ये देखो, इसका Q का एक्सप्रेशन देखा, और अब एक एक करके आप ऑप्शंस को रीड करते जाओ। ठीक है, जैसे मैं एक बार रीड करता हूँ आपके साथ में, सो बाकी लोग भी देख लो अगर उन्होंने सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं देखा है तो। बुकलेट में 33rd पेज पे, 34th पेज पे इनफैक्ट। तो अब आप देखो ना, ये आपका E का एक्सप्रेशन आ जाएगा नर्स इक्वेशन से। अब लेट्स से ए ऑप्शन आपको बोला जा रहा है आप सॉलिड AgCl डालोगे, सॉलिड AgCl डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सॉलिड उससे रिएक्शन आगे पीछे जाएगा ही नहीं, तो E अनचेंज्ड है।
फिर बी ऑप्शन में आपको बोला कि आपने 10 ग्राम NaCl डाला इन द राइट हाफ, मतलब आपने NaCl डाला मतलब Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपने कम कर दिया, और सॉरी बढ़ा दिया, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो Q बढ़ गया, Q बढ़ गया तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई, नेगेटिव वैल्यू बढ़ गया तो E ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। देन सी ऑप्शन में आपने वाटर डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो एनोड में ये क्रोमियम 3+ अपॉन क्रोमियम 2+ है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों में डिवाइड बाय वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर आप वॉल्यूम चेंज कर दोगे तो भी दैट इफेक्ट गेट्स कैंसल्ड आउट, अगेन इट विल बी अनचेंज्ड। देन डी पार्ट में अगर आप क्रोमियम 3+ ऐड कर रहे हो तो न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो तो लॉग का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ई ओवरऑल कम हो जाएगा। And then E part में if you take more HgNO3 तो it will bring the equilibrium backward for the right hand side which will decrease the Cl minus concentration. If you decrease the Cl minus concentration तो log का वैल्यू कम हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है तो E का वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में आया? Yes sir, thank you. All right, और कुछ पूछना है आप लोगों को? सॉल्व एग्जांपल अच्छे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने नहीं करे हैं तो प्लीज आई वुड रेकमेंड कि डू दोस क्वेश्चंस, दे आर बेटर देन FBO FBS। एंड व्हेन आई से डू दोस क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं सॉल्व एग्जांपल है तो रीड कर लिया कि हाँ ये सोल्यूशन है, आप खुद अपने तरीके से ट्राई करो, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि सॉल्व एग्जांपल के में जो तरीके दिए हुए हैं एंड मैंने जो तरीके बताए होंगे समझाए होंगे दे वुड बी क्वाइट डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व एग्जांपल रीड करके या उसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करो, आपको जो बताया गया है पढ़ाया गया उसके हिसाब से आप सॉल्व एग्जांपल ट्राई करो एंड जस्ट मैच द आंसर। इफ इट इज मैचिंग गुड इनफ, इट्स नॉट, देन लेट्स डिस्कस। Sir, question number 29B. क्वेश्चन नंबर 29B, यार एक आध क्वेश्चन ना गड़बड़ आ गया था इसमें भी, लेट मी जस्ट चेक। um, 29 का बी नहीं, 29 का बी में क्या गड़बड़ है? आपको SRP ऑफ मेटल मेटल आयन दे दिया है एंड आपको KSP ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट दे दिया है, तो जब हम SRP ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट डालते हैं तो वो सीधा फॉर्मूला बनता है ना, SRP ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू SRP ऑफ मेटल मेटल आयन प्लस RT/NF ln KSP। ठीक है, उसका सोल्यूशन पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करो, उसका सोल्यूशन बहुत ही दर्दनाक सा है, आप सिर्फ लास्ट की एक लाइन रीड कर लो जो मैंने आपको क्लास नोट में बताया हुआ है। ठीक है, जस्ट रीड दैट लास्ट लाइन एंड दैट इज व्हाट द सोल्यूशन इज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब इनफैक्ट अगर मेरे पास यहाँ पर ड्राइव में है तो मैं शेयर करके, एक मिनट रुको ना, मैं आपको दिखाता हूँ बुकलेट में। कौन से पेज पर है ये? हाँ ये वाला, राइट। तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे? Sir, 29. हाँ 29 का बी पार्ट पूछा था ना, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो, बस ये इतना इक्वेशन काम का है, बाकी पूरा सोल्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको बताया है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का SRP इज इक्वल टू मेटल मेटल आयन प्लस RT/NF ln KSP, खत्म, बाकी कुछ मत करो, बाकी पूरा सोल्यूशन Okay, sir. जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ? बाकी क्लियर है? तो आज का क्लास क्लोज कर दें, नोट्स में आपको भेज दूंगा, लिंक का रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट वैसे तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, बट अगर नोटिस करना है तो यहीं पे नोटिस कर लो, टारगेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर दिस विल बी, सो वीडियो लेक्चर 5 एंड 6 दोनों देख के आना, ठीक है, साथ में वर्क करना। दीज आर ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स नाउ।
So you have time till Friday, good enough time है. And then booklet में, ठीक है, booklet में FBO में 61 से 104 करना, and FBS में let me just quickly tell you 35 से 49. ठीक है, तो these are doable Friday की क्लास के लिए. So come prepared guys. Okay, चलो, thank you guys, let's close the session for the day. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Sir. Bye.